ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ جموں میں ایل جی منوج سنہا کی صدارت میں کسانوں کی ترقی کے لیے J&K ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ ہوئی منعقد۔ کئی اہم امور پر ہوا تبادلہ خیال۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں امپیکٹ آف وائرل انفیکشنز موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا آغاز۔ اور وادی میں آج کل زعفران کے کھیتوں میں کافی چہل پہل، متعلقہ کسانوں کا حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں آج جموں میں کسانوں کی ترقی کے لیے J&K ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران ایل جی نے صلاح کار بورڈ کے ممبروں اور زراعت محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ UT میں محکمہ زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی مجموعی ترقی کے لیے نقشِ راہ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ UT انتظامیہ زرعی سیکٹر میں پیداوارت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مؤثر اپروچ اپنا رہی ہے، جس سے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کسانوں کی مارکیٹ تک رسائی ممکن بنے گی، جبکہ زرعی سیکٹر بالخصوص چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کسانوں کے لیے بینکوں کے ذریعے مالی امداد کی فراہمی بھی یقینی بنے گی۔ میٹنگ کے دوران اپیکس کمیٹی کی سفارشات اور UT انتظامیہ کے زرعی سیکٹر میں اصلاحات کے حوالے سے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ اپیکس کمیٹی کی سفارشات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا اپروچ کسان اور زرعی سیکٹر سے وابستہ برادری پر مرکوز ہے، تاکہ پالیسیوں میں کسانوں کی شراکت اور فیصلہ سازی میں ان کی آراء کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ڈاکٹر منگلا رائے، جو کہ UT سطح کی اپیکس کمیٹی کی سربراہ ہیں، کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس اپیکس کمیٹی نے یہاں زرعی اور اس سے منسلک سیکٹروں کے علاوہ اس سیکٹر سے وابستہ لوگوں کی مجموعی ترقی کے حوالے سے جو ویژن ڈاکیومنٹ مرتب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس دوران ایگریکلچر پروڈکشن محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، سکاسٹ جموں کے وائس چانسلر پروفیسر JP شرما اور زرعی یونیورسٹی کشمیر کے VC پروفیسر نذیر احمد گنائی نے بھی اس ویژن ڈاکیومنٹ پر اظہار خیال کیا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ پاپا یہ سب؟ ہاں، جو چیزیں برسوں سے بے مصرف پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور FD۔ ارے یہ کیسے رہ گئی؟ کیسے گئے؟ نہیں، حل ہے۔ بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے، ورنہ کھاتا انوپریٹو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بینک سے رابطہ کریں، کھاتے کو جاری کروائیں اور اپنی جو رقم ہے اس کا سود کے ساتھ کلیم کریں۔ دادو یہ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ امپیکٹ آف وائرل انفیکشنز موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج سے زرعی یونیورسٹی کشمیر میں شروع ہوئی۔ اس کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی سطح کے سائنسدان شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کی ابتدائی تقریب میں سکم سورا کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز کول نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران ملک کے معروف وائرولوجسٹس اور سائنسدان موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آج ابتدائی تقریب کے دوران انڈین وائرولوجیکل سوسائٹی نے اپنے 30ویں سالانہ کنونشن کے تحت وائرولوجی کے میدان میں نمایاں کارنامے انجام دینے کے لیے معروف وائرولوجسٹس کو انعامات اور فیلوشپ عطا کیے۔ JK EDI اور گورنمنٹ ڈگری کالج کپواڑہ کے اشتراک سے کپواڑہ میں ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس سرحدی ضلع کے دور دراز علاقوں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو انسٹی ٹیوٹ کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے منعقدہ اس پروگرام کی صدارت ادارے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر کے موجودہ اقتصادی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے چھوٹے درجے کی صنعت کاری جموں کشمیر میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی رہنمائی اور قیادت میں سرکار UT کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں کی ترقی کی وعدہ بند ہے۔ بعد میں ڈائریکٹر موصوف نے ایک پروگرام کے دوران کپواڑہ ضلع کی ان خواتین آنٹرپرینرز جنہوں نے حال ہی میں 10 روزہ آنٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام مکمل کیا ہے میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ جموں کشمیر اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے۔ آج حلقہ انتخاب کپواڑہ کے آورا بلاک کے پارٹی عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ہم سب کو یکجٹ ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہی وہ جماعت ہے جس کی جڑیں جموں کشمیر کے کونے کونے میں موجود ہیں اور یہی جماعت یہاں کے عوام کے احساسات اور جذبات کی پوری طرح ترجمانی کر رہی ہے۔ اس دوران پارٹی کے اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شری گرو نانک دیو جی مہاراج کی یوم پیدائش کے موقع پر جموں کشمیر کے تمام گردواروں اور خالص آبادی والے علاقوں میں بلا خلل بجلی، پینے کے صاف پانی اور صفائی ستھرائی وغیرہ کی خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔
पीडीपी ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम का इत्माम किया। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में मुनाकिद इस प्रोग्राम के दौरान कई लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी सदर के अलावा सीनियर लीडरान नईम अख्तर और आसिया नकाश ने पार्टी में शामिल हुए नए लोगों का खैर मकदम किया। पार्टी सदर ने इस मौके पर कारकुनों और ओहदेदारों पर जोर दिया कि पीडीपी को हर सतह पर मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शाह कलंदर फोक थिएटर के एहतमाम से बॉयज डिग्री कॉलेज बारामूला में लोक मौसीकी का एक रोजा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। जश्न कश्मीर के तहत मुनाकिदा इस प्रोग्राम में नामवर फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन की दादो तहसीन हासिल की। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खुसूसी, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के सदर तौसीफ रैना मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम में माहिरीन तालीम, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, बड़ी तादाद में तलबा और कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने प्रोग्राम मुंतजमीन बिलखुसूस कल्चरल एकेडमी की सताइश की। उन्होंने मकामी फन, तहजीब व तमद्दुन और लोक मौसीकी के फरोग के लिए मकामी फनकारों को जिला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वादी के उन इलाकों में जहां जाफरान की काश्त की जा रही है, आजकल काफी रौनक पाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त जाफरान के फूल चुनने का सीजन उरूज पर है। जाफरान की काश्त से वाबस्ता किसान अब की बार कदरे मुतमईन नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों के मुकाबले में इमसाल जाफरान की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ मुतल्लिका काश्तकारों ने कहा कि जीआई टैग और मार्केटिंग सहूलियात के हवाले से हुकूमती इकदामात भी काबिल सराहना हैं। अभी तो साफरान की हार्वेस्टिंग चल रही है। मुझे लगता है ये 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अभी धीरे धीरे चल रहा है। एक दो पैकिंग हो गई है, अभी और 2 पैकिंग एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। तो फार्मरों में अभी इस वक्त यही चल रहा है कि हर 2 दिन के बाद जब उठाते हैं तो और फूल आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव उठाया है। ये काबिल दाद है, वो लोग काबिल तासीर हैं कि उन्होंने सैफरन पारो को यहाँ दसू में एस्टेब्लिश किया है। अब जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी ये सैफरान किस रीजन से उगाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे कश्मीरी सैफरान को जीआई टैग मिला है। जितने भी हमारे फार्मरों ने सैफरान पार्क में अपनी प्रोसेस को लिए, लास्ट ईयर भी उनको ओपन मार्केट से दुगना मिला है। पर्स पर गई मंडी याद योर आना तो ये लंबर वाइज पे कनान पे लंबर पे तमिस पस बैंकस वातान पोस तमिस कहीं प्रॉब्लम गसान सह बड़ खुश गसान मे कुन मे पोस पे तमिस लगान 3 दो या 4 दो तमिस पोस वातान। विजिलेंस जानकारी हफ्ते के तहत मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने मुलाजिमीन के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान शफाफियत और दियानतदारी की अहमियत उजागर की गई। प्रोग्राम में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, जिलाई अफसरान और दीगर एहलकारों ने भी शिरकत की। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन और डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि सभी को इज्तिमाई और इंफरादी सतह पर रिश्वत सतानी और दीगर बिद्दात के खिलाफ अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। मौसम सरमा के दरमियान अवाम को माकूल बिजली सप्लाई दस्तियाब रखने के हवाले से कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरी तरह मुतहरिक है। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन और दरख्तों की शाख तराशी समेत कई दीगर जरूरी इकदाम कर रही है। कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तवक्को है कि 10 नवंबर के बाद एक नया बिजली शेड्यूल मुश्तहर किया जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन और दीगर जरूरी काम 15 नवंबर से कबल मुकम्मल किए जाएंगे। अक्टूबर के महीने में हमारी जो भी 33 केवी या 11 केवी की जो लाइन्स हैं उनकी स्टेबलाइजेशन के काम किए और जो लाइन्स के साथ साथ जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो टहनियाँ वगैरह उनको काटने का काम किया, ताकि बर्फबारी के वक्त कम से कम नुकसान और इंटरप्शंस हो। तो उम्मीद है कि अवाम की ताउन से इस बार हम पिछले साल की तरह ठीक शेड्यूल के हिसाब से बिजली फराहम कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सर्दियों में बर्फबारी में अंदेशा होता है कि लाइन्स में नुकसान होगा वगैरह होगा, तो उस जमीन में हमने ऑलरेडी पोल, तार और ट्रांसफार्मर डिस्ट्रिक्ट्स में भेज रखे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक मौजूद रहे।
मराज अदबी संगम की सालाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में किया गया। कॉन्फ्रेंस में दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी और गुलाम नबी आतिफ समेत कई मारूफ कलमकारों, अदीबों और शायरों ने शिरकत की। इस दौरान मराज अदबी संगम के सदर अली शैदा ने कहा कि अंजुमन की अदबी सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान शायर और ब्रॉडकास्टर सतीश विमल को शान मराज अवार्ड से नवाजा गया, जबकि शायर और अदीब प्रोफेसर फारूक फैयाज को शर्फ मराज अवार्ड दिया गया। हुमामा बडगाम में आज एक दिलदोज हादसे में बिजली करंट लगने से 18 बरस के एक जवान लड़की की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ईदगाह मोहल्ला हुमामा के रहने वाले सोहेल अहमद डार को अपने दोस्त की बेकरी दुकान में बिजली करंट लग गई। अगरचे उसे फौरी तौर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, तहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर ने सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन को भी रिवाइज्ड मिनिमम वेज के हिसाब से उजरत दी जाए। अपने एक बयान में सदर फैयाज अहमद शबनम ने कहा कि वर्कर कलील उजरत पर अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं और आज जरूरी है कि लद्दाख हुकूमत की तर्ज पर ही उन्हें भी रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस के हिसाब से उजरत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IPPB की जम्मू कश्मीर में डल झील में भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप मुनक़िद करने के लिए IPPB की सताइश की है। IPPB की जानिब से एक ट्वीट के जवाब में नरेंद्र मोदी ने इसे एक अनोखा कदम करार दिया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शोबे खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियाद पर न्यूज रीडर और मुआविन एडिटर की एम्पैनलमेंट के लिए दरखास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल, जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 वर्ष के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताजा तरीन हालात वाकयात और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू व कश्मीरी जुबानों पर दस्तरस होना जरूरी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजुर्बा याफ्ता होना लाजमी है। एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात व वाकयात के साथ साथ अंग्रेजी व मकामी जबानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरखास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। साबिक मेंबर असेंबली लंगेट अब्दुल गनी मीर मुख्तसर अदालत के बाद 88 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। वो CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील अहमद मीर के वालिद थे। मरहूम की इज्तिमाई फातिखानी 7 नवंबर सोमवार को सुबह 11 बजे हाउसिंग कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। मेजर गोपी सिंह राठौर ऐसी मेमोरियल नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में हाशिमी बांडीपोरा टीम और बांडीपोरा फुटबॉल टीम के दरमियान खेला गया। फौज के एहतमाम से मुनाकिदा इस टूर्नामेंट में शुमाली कश्मीर की तकरीबन 50 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच के दौरान आज DC बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद के अलावा पुलिस, सिविल इंतजामिया और फौज के कई अफसरान भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में लोगों ने इस फाइनल मैच से लुत्फ उठाया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर जगहों पर बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज IDD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।